سب سے پہلے تاخیر کی معذرت، وہ نہ آپ کے بس میں تھی نہ میرے بس میں۔ کراچی ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آ چکی تھیں کہ جہاز پھر واپس اٹھا، چونکہ کپتان نے یہ بتایا کہ ویزیبلٹی جو ہے وہ 200 میٹر تک ہے اور اس میں لینڈنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر واپس نواب شاہ گیا، 3.5 گھنٹے نواب شاہ کھڑا رہا اور اس کے بعد آیا، اور ابھی بھاگم بھاگ پہنچا ہوں، بس وہ مشکل وضو کیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب اگر تھکن نہیں ہے تو 2-4 باتیں میں بھی کر لوں۔ سورہ حج سے ایک آیت تلاوت کرنے چلا ہوں، بس جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ نے آیت لکھنی ہے، اگلے مراحل اتنے آسان ہیں۔ اللہ اپنے حبیب محمد احمد محمود اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہہ رہا ہے، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اے میرے رسول، تو نے دیکھا نہیں جو 7 آسمان میں ہیں میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب آسمان 7 ہیں اور ایک آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی حاصل جمع نہیں بتا سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے الم ترى، تو نے دیکھا نہیں کہ 7 آسمانوں والے میرا سجدہ کر رہے ہیں، ومن فی الارض 7 زمینوں والے میرا سجدہ کر رہے ہیں، والشمس والقمر، شمس و قمر میرا سجدہ کرتے ہیں، والنجوم ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں، والشجر درخت میرا سجدہ کرتے ہیں، والدواب چوپائے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں 2 مسئلے میں نے سمجھے ہیں مولانا۔ ایک تو رسول کی وسعت نظر کو دیکھا، اور دوسرے غفران میں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں ذرے سے عرش تک ہر شے ساجد ہے۔ جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ سید الساجدین ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے محلے والوں کو گھبرا تو نہیں رہے نا؟ سورج شمس ساجد ہے، تو پھر مجھے دلشاد نقوی حق ہے نا مسردا کہنے کا کہ میرا امام سید الشمس والقمر ہے۔ نجوم کا اللہ نے نام لیا، ستارے ساجد ہیں، یہ سید النجوم ہے۔ کرسی ساجد ہے، یہ سید الکرسی ہے۔ نہیں، حالانکہ تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، اس وقت بھی میرا دماغ چکر میں ہے، لیکن میری طبیعت نیت میں کوئی بخل نہیں ہے۔ کرسی کیا ہے جو سجدہ کرتی ہے؟ قرآن پڑھ، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کہتے ہیں میری کرسی نے 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو ساجد ہے کائنات اس کے گھیرے میں ہے، سید الساجدین کیسا ہوگا؟ اللہ اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ جو حکیم سجاد ایک علم نجوم کا عالم آیا تمہارے مولا سجاد کے پاس،
مولانا نے فرمایا ما بلغ میرے علم کا، کہاں تک پہنچا ہے تیرا علم؟ کہ مولا میں زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کی وسعت میں ستاروں کی چال پڑھ لیتا ہوں۔ مولا مسکرائے فرمایا حل ادلک علی رجل قد مر منذ دخلت علینا فی الدنیا کلہا ولم یتحرک من مکانہ، میں تمہیں ایک ایسا عالم بتاؤں جتنی دیر تجھے میری محفل میں آئے ہوئے گزری ہے اتنی دیر میں کائنات کا ہر گوشہ بھی پھر لیا ہے اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اللہ اللہ سٹ پٹا کے حیران ہو کے کہتا ہے من ہوا، کون ہے وہ؟ قال انا، فرمایا میں ہوں، اور کون ہے؟ جو ہاں مولانا عرش سجدہ کرتا ہے، بچے بازو کھول کے بیٹھو، عرش ساجد ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ نہیں پھر ماننا پڑے گا نا کہ اس کی سیادت بالائے عرش ہے۔ یار میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ عرش کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ عرش کوئی منبر ہے، کوئی تخت ہے؟ کرسی کوئی چیئر ہے؟ نہیں، منتہائے زمان کا نام ہے کرسی، جہاں زمان دم کو توڑ دے اور لا زمانی شروع ہو جائے، علمی زمانوں سے کہہ رہا ہوں، وہ ہے کرسی۔ اور جہاں مکان دم توڑ دے اور لا مکانی شروع ہو جائے وہ عرش ہے، یعنی عرش کے آگے لا مکانی ہے۔ بات تو میں نے غفران کر دی اور میرے سامعین نے توجہ ہی نہیں دی۔ اور جس کی سیادت کی سرحد لا مکانی سے شروع ہو، خود کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت انتظار کیا ہے آپ نے، تھکنے لگو مجھے اشارہ کر دینا، میں راضی ہوں تم سے۔ 3 لقب تمہارے امام کے ساتھ عدنان مسردہ ایسے ہیں: زین العابدین، سید الساجدین، شادباش اور سجاد۔ یعنی دیکھیں ایک ہی صفت، ایک ہی جہت کے 2 لقب، سجاد بھی سید الساجدین بھی، ٹھیک ہے نا؟ سجاد بہت بڑا سجدہ گزار، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین عابدین کی زینت۔ یہی وجہ ہے غفران، پورے قرآن میں اللہ نے تمہارے رسول کو عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ اور پچھلے کونے والا سمجھ آ رہی بات؟ رسول کو عابد کہا، ساجد نہیں۔ کیوں؟ پتا تھا میں نے اس کے بیٹے کو 2 لقب دینے ہیں۔ بیٹا باپ کی زینت تو ہو سکتا ہے، باپ کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر جی۔ اسی یہ تو وہ گھر ہے کراچی والوں، مرد تو مرد، اس گھر کے پردہ دار باپ کی زینت ہوتے ہیں۔ بس میں کہہ گیا جو کہنا تھا۔ زینب کے کیا معنی ہے؟ باپ کی زینت۔ باپ تجھ سا مجھ جیسا، باپ وہ جس کے بارے میں مما ینطق عن الہوا کی وہ اس بیٹے زبان کہہ رہے یا علی انت زین الرحمن، اے علی تو رحمان کی زینت ہے۔ نہیں اب دو باتیں، ناراض بھی ہو جاؤ گے تو کہوں گا اور راضی ہو جاؤ گے تو پھر مولا بھی تم سے راضی ہوگا۔
क्या कहा है रसूल ने? अंत ज़ैनुर रहमान, तू रहमान की जीनत है। अब जरा मेरे कान में बताना, अगर नमाज से रहमान की जीनत निकल जाए बचता क्या है? जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, अली है बेबदन की जीनत और ये बेटी है उस अली की जीनत। अफरान मैं चाहता हूं हर शख्स खुद पहुंचे, यानी अगर ये ना होती अली बेजीनत होता। बस मैंने जो कहना था वो मैं कह गया। हाँ, यानी अली जैसे वली ये मुतलक की जीनत का सबब है ये। हाँ, तो जब बेटियां जीनत हैं तो सज्जाद जैसा बेटा ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, साजिद इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर रसूल को साजिद कहता तो फिर इसे सैयद साजिदीन न कहता, और फिर सज्जाद। अच्छा मौलाना, ये जो तीनों लक़ब हैं, ज़ैन, सैयद और सज्जाद, इन तीनों लक़बों में तुम्हारे चौथे इमाम की सिफतें छुपी हुई हैं। लगता है पिछला मोहल्ला मुझसे भी ज्यादा थका हुआ है, नहीं? अच्छा, कभी कभी हाथ उठा लेना, दादी नहीं चलूंगा। जो आगे बैठे क्यों हैं? आखिर बैठे हैं तो फिर बोले भी। हाँ, लेकिन तुम्हें हाथ उठाने की छुट्टी नहीं। अब देखें ज़ैन, इसका मैं दिलशाद नकवी अदद बताता हूं। मैं मैथ में कमजोर रहा हूं हमेशा, जमा करके बताना कितने हैं। जे के 7, ये के 10, नून के 50 हैं? हाँ शाबाश। 67, 6 और 7 67, 6 और 7 13, 3 और 1 4, चौथा इमाम नहीं? यानी इसी के लक़ब में उसकी इमामत का नंबर छुपा हुआ है। थक गया तो छोड़ दूं? अब जरा ओएस बेटे ये तुमने जमा करना है। सैयद के अदद गिनते हैं। सीन के 60, ये के 10, ऊंचा बोला करो। दाल के 4, 74, 7 4 11, 1 और 1 2, दूसरा अली नहीं? अल्लाह। ये आज से कोई कम अज कम भी 35 बरस हकीम सज्जाद मुसरदा पहले की बात है। किसी अवाम में से नहीं, एक साहिब इल्म ने मुझसे कहा था, अगर आपसे कहा जाए कि एक फिक्रे में, एक जुमले में अली बोले, क्या बोलोगे? मैंने कहा भाई जिसके फजाइल 8 समंदरों की स्याही ना लिख सके, रूए जमीन के दरख्तों के कलम ना लिख पाए, तो कितनी बड़ी सख्त ड्यूटी लगा रहा है मेरी। बहरहाल मैंने कहा कोशिश करता हूं, और वो जुमला ये है कि अली अल्लाह है नहीं मगर लगता है।
اللہ نہیں ہے علی، بالکل اللہ نہیں، عبد خدا ہے مگر لگتا ہے۔ اسی طرح اگر غفران دلشاد نقوی حکیم سجاد مجھے کہا جائے کہ زین العابدین کو ایک جملے میں بولو تو پتہ ہے میں کیا بولوں گا؟ علی وہ طلسم کبریائی ہے جس نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی بنانے نہ دیا۔ وہ علی بھی موجود تھا اور اس کی موجودگی میں یہ علی بن کے آ گیا۔ جو ٹھیک ہے، صرف علی بن کے آیا نہیں، علی سے منوایا کہ تو علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی زین کے لقب نے امامت بتائی، چوتھا امام۔ سید کے لقب نے یہ بتایا کہ دوسرا علی۔ اب ذرا سجاد کو دیکھیں، سین کے 60، جیم کے 3، الف کا 1، دال کے 4، 6 اور 8 14، 4 اور 1 5، پانچواں مرد معصوم ہے کہ نہیں؟ پانچواں مرد نہیں، ایک بات کہے بنا نہیں رہوں گا ورنہ شاید میں نمک حرام نہ لکھا جاؤں۔ گو کہ میں خود غفران کئی دفعہ یہاں کراچی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس گھر کے مرد بھی محمد ہیں اور پردہ دار بھی محمد ہیں۔ تو پھر تمہارا سوال بنتا تھا نا، پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پانچواں مرد معصوم؟ جس کا نام بطول ہے نا، وہ دائرہ عصمت کا قطب ہے جس کے گرد سارے گھومتے ہیں۔ چھوڑ دوں؟ اسی نعرے کے خوگر بنو، ایسی عادت ڈالو اپنی رگوں کو توڑ توڑ کے عادی کرو یا علی کہنے کا۔ سونے کے لیے لیٹو یا علی، آنکھیں بند ہوں یا علی، کروٹ بدلو یا علی، آنکھ کھلے یا علی، اٹھو یا علی، چلو یا علی، ٹھوکر لگے یا علی، سنبھلو یا علی، دل چاہے یا علی، نہ چاہے یا علی۔ عادت ہوگی نا یا علی کہنے کی، جب نکیرین گرد لے کے قبر میں آگے بڑھیں گے تو عادت کے مطابق یا علی کہے گا، انہیں سوال جواب بھول جائے گا، سلامی دینے میں مجبور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سجاد پتہ ہے سب سے پہلے اسے کس نے لقب دیا اور کب سے سجاد ہے پتہ نہیں؟ تو شرمانے والی کیا بات ہے؟ میں آپ کا خادم کس لیے ہوں؟ پھر مجھ سے کہو کہ تو بتا دے۔ نہیں ٹھیک ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی 2 سال کا بھی نہیں تھا بظاہر، شاد باش یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ میں نے کہا بظاہر 2 سال کا بھی نہیں تھا، باطل میں سب تو بس یہ خدا سے چھوٹے ہیں، باقی خدائی سے بڑے ہیں۔ اللہ سمجھ آئی بات؟ ہاں کتنے چھوٹے ہیں؟ ماہ و سال کا حساب کون کرے؟ کس کا جگر، کس کا کلیجہ؟ میں مثال سے غفران سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
कभी सूरज तुलू होते देखा? नहीं देखा तो फिर देखना। सबसे पहले सुर्ख रंग का थाल बरामद होता है, ठीक है ना? शुआएं नहीं होती। मैंने घड़ी पे देख कर आजमाया है, एक बार नहीं बार बार। पूरे 8 मिनट और 24 सेकंड के बाद पहली किरण फूटती है। यानी पहले सूरज था, शुआएं नहीं थी। 8 मिनट 24 सेकंड। जरा जमा करो। 8 2 10, 4 14। इस सूरज का ये वक्त रख के अल्लाह ने कायनात के कम इल्मों को बताया कि इनमें और मुझ में बस यही फर्क है, जितनी देर शुआ नहीं थी इतनी देर मैं था, ये नहीं थे। अच्छा, तो फिर ध्यान में जब ये शुआएं फूटती हैं तो क्या सूरज इन्हें खल्क करता है? नहीं। जाओ उलमाए हयात से पूछो, साइंसदानों से पूछो, उलमाए शरीयत से पूछो। ये सूरज में कहीं छुपी हुई थी। थकान के बावजूद मैं कराची वालों मौलाना इनको तोहफा दे रहा हूँ। सूरज में कहीं छुपी हुई थी, फिर जाहिर हुई। और यही मकसद है उस हदीस कुदसी का, कुन तो कंजन मख्फियन फाहबब तो अनौरफा। मैं छुपाया हुआ खजाना था, वो शुआएं उस बेदिल के दिल में कहीं छुपी हुई थी। फिर उसने जाहिर की। और अच्छा, जब सूरज डूबने लगता है मौलाना, फिर डूबने से थोड़ी देर पहले वैसा हो जाता है जैसे उभरते वक्त था। फिर गोल सुर्ख थाल। अब शुआएं किधर गई? साइंसदानों से पूछ, हयात शरीयत दोनों के उलमा से पूछ, वो तुम्हें यही जवाब देंगे। दोबारा सूरज में जम हो गई। तो फिर तुमने लिसानुल्लाह के खुतबे का ये जुमला नहीं पढ़ा, नहनु शुआउ जलाउ लिल किबरिया। अली फरमाते हम अल्लाह की किबरियाई के जलाल के सूरज की शुआएं हैं। सादिर भी उससे हुए थे, फिर इन्हें मौत नहीं आई, उसी सूरज में जम हो गए। घबरा तो नहीं गए दोस्त? जो अच्छा, एक लफ्ज़ है अज़ल। अज़ल, अब बहस लंबी हो जाएगी, मैं ना वक्त है ना तबीयत इजाज़त दे रही है। बस यूं समझ लो, लफ्ज़ दो बोले जाते हैं, अज़ल अबद। तारीफ क्या है इनकी? इस तरह समेट के, जैसे मौलाना ने कहा था ना, समंदर को कोज़े में बंद करना, वैसे ही कर रहा हूं, बल्कि समंदर को कतरे में बंद कर रहा हूं। अल अज़लुल लज़ी ला इब्तिदा लहू, जिसकी इब्तिदा की खबर ना हो वो अज़ल होता है। वल अबदुल लज़ी ला इंतहा लहू, और जिसकी इंतहा का पता ना हो वो अबद होता है। तो बज़ाहिर 2 साल से भी कम उम्र है तेरा मौला सज्जाद। अली का बचपना अली की जवानी की आगोश में है।
तवातरा बिलकुबलात, ये लफ्ज है, यानी बारिश की तरह बरसा रहे हैं अली बोसे छोटे अली पर। बच्चों समझ आ रही है ना बात है? मुसलसल पैहम बारिश की तरह। मौला के साहबी देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ भाई क्यों ना हो, औलाद की औलाद है, असल जर से नफा ज्यादा प्यारा होता है, औलाद की औलाद औलाद से भी ज्यादा प्यारा लगती है। बस ये कहना था, वजहुल्लाह पे सुर्खी जलाल आई, लिसानुल्लाह के लहजे के तेवर बदल गए। फरमाया हमारे खानदान में रिश्तों का प्यार नहीं चलता, हम किसी से प्यार रिश्तों के सबब से नहीं करते। तो मौला क्यों कर रहे हो? फरमाया हाज़ा हुज्जतुल्लाह फिल आफाक़ बअदी वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल। अभी अज़ल बता चुका हूं तुम्हें। वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल वल हिलालुल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम। फरमाया ये खुदा की पूरी खुदाई के आफाक में मेरे बाद मुझ जैसी हुज्जत है। आफाक की हुज्जत समझ के चूम रहा हूं, पोता समझ के नहीं, बेटा समझ के नहीं। और कहा बेटे दूसरा जुमला यहां लिखना, पर मैं बस सज्जादु फी बैतिल अज़ल, जो इस घर को मानते हैं सोचते नहीं, वो मेरी तरफ देखें। फरमाइए ये तो वो है जिसने बैते अज़ल में भी मुसल्ला बिछाया। देखो देखो देखो, यूं है ये सातों आसमान सातों जमीनें मुसर्रा और उसमें रहने वाली खुदाई, ये ज़मान और ज़मानियात। जब इनमें से कुछ नहीं था तब था दहर, जब दहर में से कुछ नहीं था तब था सरमद, जब सरमद में से भी कुछ नहीं था तब था अज़ल। अब मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, बच्चों, बेटों, न जमीन है न आसमान है, ये तो ज़मान है। उससे पहले दहर है, वो भी नहीं है। उससे पहले सरमद अदनान, वो भी नहीं है। उससे पहले अज़ल है। न अर्श है, न कुर्सी है, न लौह है, न कलम है, न मकान है, न ज़मान है, न शय है। ये मुसल्ला कहाँ बिछा रहा है? चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? जिन की इबादत गाहला मकानी हो, खुद कहाँ रहते होंगे भाई? अल्लाह थके हो तो मैं राजी हूं, बस छोड़ दूं। और अगला जुमला उनके लिए बोलने लगा हूं जिन्हें उर्दू सुनना भी आती है, समझना भी आती है और इंशा परदाजी की रूह को भी जानते हैं। अली फरमाते वाले हिलाउल्लज़ी तला फी मसाइल ज़ुलमतिल अदम, मेरा ये वो बेटा है जिसने अदम की शाम के अंधेरों में ये हिलाल बन के चमका। फी मसाए ज़ुलमतिल अदम, वजूद की जिद है अदम, यानी वजूद ना हो जब कोई भी,
वो अदम होता है। और अली फरमा रहे हैं कि शाम अदम के अंधेरों में ये हिलाल बन के चमका। मैंने गुफरान बैठ के सोचा, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। अली ने बद्र क्यों नहीं कहा? 14वीं का चांद क्यों नहीं कहा? भाई बाजू खोलो, कितनी दफा कहूं, तुम्हें कह रहा हूं काले कपड़े वाले बाजू खोल के बैठ। मजलिस में बैठने के आदाब नहीं है, ये बैठक में उताक में बैठने के आदाब है। मेरी तरफ देखना। क्यों नहीं कहा अली ने कि ये माह शबे दो हफ्ता है, ये 14वीं का चांद है? वो सोच रहा था, बिजली चमकी। मैंने कहा या अली, तुझे ही अली होना जेब देता है। समझ में आ गया, तूने 14वीं का चांद क्यों नहीं कहा, पहली का क्यों कहा? क्योंकि 14वीं का चांद रोज रोज घटता है और पहली का चांद रोज रोज बढ़ता है। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? हाँ। अब जो मौलाना अली वो है, बस एक ही फिक्रे में बंद कर दी है मैंने बात, यहां लिख लेना। अली वो है बंदे से खुदा तक जिसकी मदह करते हैं। जो मिर्जा गालिब ने भी कहा था, किसका मकदूर है मद्दाही ममदू है खुदा। भाई जिसकी मदा खुदा करे, किसकी कुदरत है कि उसकी बंदा हो के मदा करे? तो इसीलिए कराची वालों मैंने कहा, बंदे से खुदा तक जिसकी मदह करें, जिसके फजाइल पढ़ें, वो 2.25 साल के सज्जाद के फजाइल पढ़ रहा है। एक फिक्रा इसी सैयद साजिदीन की ज़बानी बताने लगा हूं, मेरी तरफ देखना, लिख लेना लोहे दिल पर। किसी ने पूछा, बिमा फुज़्ज़लतुम अलल आलमीन, आप जो ये दावा करते हैं कि हम आलमीन से अफजल हैं, मेरे ख्याल से तुम थक गए हो। जो दावा कर, अच्छा आलमीन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस शाय का वो रब है वो आलमीन है। और सवाल ये हो रहा है कि आप जो कहते हैं हम आलमीन से अफजल हैं, दलील क्या है? अब ऐसे जवाब वही दे सकते हैं, पढ़ने वाला आलिम नहीं देख सकता, अल्लाह का पढ़ाया हुआ दे सकता है। मेरे मौला ने मुस्करा के फरमाया, यतमन्ना कुल्लु आहदिन अन यकून मिन्ना वला नतमन्ना अन नकून मिन आहदिन। फरमाया खुदा की पूरी खुदाई का हर शख्स ये तमन्ना करता है मैं इन जैसा होता। हमने भी कभी कहा हम उस जैसे होते। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ अच्छा, बस समेटता हूं मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। एक जुमला बड़े अली की ज़बानी सुना, छोटे अली के लिए सुना ना। अब एक जुमला इसी छोटे अली से सुनो, बड़े अली के लिए। हाँ, अल्लाह अकबर। अगर मोहतरम शरा करने बैठूं ना तो कम अज कम भी एक अलग मजलिस चाहिए, वक्त ही नहीं है, बस तर्जमे से गुजारा करना। सैयद साजिदीन फरमाते हैं, इन्ना अलियन कल काबते, फरमाया मेरे बाबा अली की मिसाल काबे की है। सर उठा
और इस हदीस का गुफरान एक छोटा लाहिका भी है कि अन-नज़्रु इलैहा इबादतुन वल हज्जु इलैहा फरीज़तुन, काबे को देखना इबादत है और उसकी हज फर्ज है। तो फिर आज के बाद इनकी ज़वारी को मुस्तहब न कहना। जो 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 जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल है। आगे फरमाते हैं कमा ला युक़दा हो फिल काबते इल्लम यातहल मुशरिकून कज़ालिका ला युनक़सु फ़ी अलिय्यिन इन अख़रहु अन हक़्क़िहिल मुक़स्सिरून। हलाल ज़ातों की अमानत है, चूँकि मैंने शियों के लिए पढ़ना होता है, किसी और फिरके के लिए ना पढ़ता हूँ ना किसी और को मुझसे मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत। लेकिन शियों के घर पैदा होने वालों के लिए धागे का 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे सरकने की गुंजाइश कोई नहीं। सर उठाना, पता नहीं क्या क्या मसले इशारतन हल कर दिए, बता दिए मेरे चौथे इमाम ने। फरमाया जिस तरह अगर मुशरिक काबे की तरफ ना आए तो काबे की शान नहीं घटती। अब जिस तरह जाग के ये जुमला सुना है फिर अगला भी ऐसे ही सुनना और अपने हाज़मे की वुसअत का सबूत भी देना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, तेरा चौथा इमाम कह रहा है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी ये है कि इंशा इमला किरात इबारत तर्जमा हवाला अल्लाह की अदालत तक मैं दामन। पर मैं जिस तरह अगर मुशरिक काबे के पास ना आए, काबे की शान में कमी नहीं आती। कज़ालिका ला युक़दा फ़ी अलिय्यिन अख़र अन हक़्क़िहिल मुक़स्सिरून। फरमा इसी तरह अगर मुक़स्सिर मेरे बाबा अली को हक से अलग करें, इन अख़रहु अन हक़्क़िल मुक़स्सिरून, अगर मुक़स्सिर मेरे बाबा के हक को अलग करें उससे। पता नहीं सज्जाद को क्या हक नजर आ रहा था जिससे मुक़स्सिर अली को अलग कर रहे हैं। मैं कह गया पता नहीं कौन मेरे साथ है। और बाकी देखो भाई, किसी को गुस्सा आए ना आए, क्योंकि मुक़स्सिर कहीं और नहीं मिलते, शियों में मिलते हैं। ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा। अब ये जाके अपने मौला सज्जाद से पूछना, मौला आपने मुक़स्सिरीन को मुशरिकीन के साथ क्यों गिना है?
खुश रहो। मुझे अपनी तबीयत पे भी इतना भरोसा नहीं था कि मैं इतना पढ़ जाऊंगा। बहरहाल वो मौला ने पढ़वाया और आपकी मोहब्बत ने पढ़वा दिया। सर उठाना, इसकी ज़ियारत में जुमले पढ़े हैं मैंने तुम्हारे चौथे इमाम की। 4 जुमले हैं, वो याद दहानी के तौर पर सुन लो और फिर एक का एक जुमला कहकर मैं दुआ मांग लूंगा। अल जाले से, क्योंकि पीछे सलाम है ना, अस्सलाम वाला, तो इसको यूं समझ लो, अस्सलाम अलल जाले से फी हुजरतिल माआतिम वल्लाबिस सवादे फिल आयाद वल मरासिम अल मज़बूह फिल अस्वाक अल मंशूर लहुल लहम कल औराक। सारे मेरी तरफ देख के तर्जमा सुनना। कहते 40 साल तक मातम के हुजरे में बैठने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं सिर्फ दुआई दे सकूंगा कि जो जो आंख इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। सिला खून रोने वाला हर मजलिस में आता है और आज तो मजलिस ही उसकी है। यकीनन वो भी मौजूद है और खून होने वाले भी कहीं पर्दे में मौजूद है। मैं सुनना मुझसे मर्द हजरात, पुरसा सज्जाद को देना। मेरी माएँ बहनें बेटियां सुने मुझसे, पुरसा शाम वाली को देना। अगला जुमला क्या है? अल्लाह बिस सवादे फिल आयाद वल मातिम, उस पर सलाम जो ईद वाले दिन भी सियाह लिबास पहनता। अल्लाह अल्लाह। हाँ भैया, ये सोच के सुन लेना, अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना बस उसी का है जो है। अगला जुमला अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो शायद मुझे आगे पढ़ना ही ना पड़े। अल मज़बूह फिल अस्वाक, मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूँ, हकीम सा खादिम हूँ, मज़हब आले मोहम्मद का। छुरी चल जाएगी, मुझे माफ कर देना। लिखा है बाजारों में ज़िबा होने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजारों में ज़िबा होने वाले पर सलाम। कोई वजह तो थी कराची वालों। 40 हिजरी 21 रमजान की जब रात ढल गई, आखिरी पहर शुरू हुआ, पूरी औलाद से तेरे मौला अली ने विदा किया और फिर पूछा करबला वाले से, मेरा सज्जाद कहाँ है? हुसैन ने रो के कहा, बाबा आपकी चारपाई का पाया पकड़ के रो रहा है, इसे उठा के मेरे सीने पे लिटा। जिसकी समझ में आ गया वो मेरा वादा है वो कब्र में भी मातम करेगा। सीने पे लेटा। आज सज्जाद के न रुखसार चूमे अली ने, न पेशानी पे बोसा दिया, मुसलसल आंखें चूम रहे हैं। आंखों पे बोसा दे के कराची वालों अली कह रहे हैं, फदे तो बेअन तरा बनाती आया, मैं कुर्बान जाऊं उन आंखों पर जिन्होंने मेरी बेटियों को नंगे सर देखना है, जिन्होंने मेरी बेटियों को शराबी के दरबार में देखना है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तेरा पुरसा कबूल करे और यकीनन कबूलियत के बाद ही आंसू निकलते हैं। तीन फिक्रों के तर्जमे मैंने कर लिए। सैयदो गैर सैयदो एक रहता है, ये तो सुन लिया। अल मज़बूह फिल अस्वाक, बाजारों में ज़िबा होने वाले पर सलाम। अगला जुमला अल मंशूर लहुल लहम कल औराक, उस पे सलाम
जिसका गोश्त बाजारों में वर्कों की तरह बिखर गया। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं अज़ादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूँ, खुदा की कसम, क्योंकि अज़ादार का दिल रेशम से भी ज्यादा नरम नाजुक होता है। मैंने कभी अज़ादार के दिल की नरमी को आजमाया नहीं। इब्ने मुनज़िर मदाइनी ने पूछा था तेरे मौला सज्जाद से, मौला सुनाए हथकड़ियां पहनाई गई, बेड़ियां, तोक, जंजीर। इमाम ने रोके कहा सिर्फ ये नहीं थे मौला, और क्या था? फरमाया शामियों ने मुझे एक लोहे का कमीज पहनाया जिसका 17 मन वजन था, गला बड़ा तंग था, उसने बड़ी यादगारें छोड़ी। मौला क्या? फरमाया मैं ज़बान से नहीं बताता, सर से अमामा उतारा, कहा पीछे आके देख। इब्ने मुनज़िर मुंह पीट के कहते हैं मौला गर्दन की हड्डी नजर आ रही है, गोश्त नजर नहीं आता। अल्लाह, ये तो जुमला था ना तेरे चौथे मजलूम इमाम का। अब पांचवें का सुन लो। हाँ, मर नहीं जाओगे रोते रोते। और अगर सज्जाद भी शाम के बाजार में मौत तलाश करता रहा और इस गम में मौत आ जाए तो इससे बड़ी शहादत क्या है? जनाब बाकर रो रो के अपने शियों को बताते थे कि जब मैंने बाबा को गुस्ल देने के लिए तख्ते गस्ल पे लिटाया, मैंने क़यामत देखी। मौला क्या? माँ बाकिया लहू लहमुन अला ज़हरिही, मेरे बाबा की पुश्त पर इतना सा गोश्त भी बाकी नहीं था। मौला कहाँ गया? कहा करबला से शाम तक शिमर ने इतने ताजियाने मारे, बाजारों में भी मारे, करबला का गोश्त बिखरता रहा। बस हो गई मजलिस। आखिरी बात, क्योंकि आज के दिन की बात न की जाए तो मजलिस अधूरी है। बस तसव्वुर कर लो, एक या 1.5 मिनट में खत्म करने वाला हूं। जहर मिल गया है तेरे इमाम को, और कराची वालों जिसे जहर मिले वो तड़पता तो है ना। सैयदो गैर सैयदो, तड़प रहा था सज्जाद। तड़पते तड़पते कोहनियों के बल तकिए पे उठा, शाम की तरफ मुंह करके कहता है कौन कहता है तू बेवारिस है? कौन कहता है तेरा वारिस कोई नहीं? जनाब बाकर ने पूछा बाबा किससे बातें कर रहे हैं? रोके का बाकर मुझे छोड़ दे, मैं जानू मेरी किस्मत जाने। शाम चला जा, फिजा का आखिरी वक्त है। फिजा के मुझ पे बड़े एहसान है। मेरी कैद की साथी है, मेरे जख्मी पांवों से मेरे कांटे चुनती रही। जा फिजा की तजहीज तकफीन कर। एजाद इमामत से रोने वालों, तेरा 5वां इमाम शाम पहुंचा। कदमों की आहट हुई, बंद आंखों से फिजा ने कहा बिस्मिल्लाह सज्जाद आ गए हो? रोके कहा दादी अम्मा मैं फाकिर हूं। मुंह पीट के कहा मैंने आवाज तेरे बाबा को दी थी, क्यों नहीं आया? रोके कहा मेरे बाबा की मजबूरी है। क्या मजबूरी? मैं बता नहीं सकता, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। देखा सज्जाद को पहली उल्टी खून की आ रही थी। कदमों पे सर मार के कहते तुझे दादी के जख्मी पहलू का वास्ता, मुझे मदीने ले चल, मैं झोली में सज्जाद के जिगर के टुकड़े संभालूं। मैं बीमार करबला के जिगर के टुकड़े